Hello students, this is Dhruv Handuja and welcome to Handuja classes. We are starting with our second chapter of class 10th, that is polynomial. Now before understanding about polynomial, we should know that what is polynomial. And before proceeding with the polynomial, first of all we should know what is algebra. Because the main branch that is dealing with the polynomial is only algebra. So what is algebra? Algebra is the branch of mathematics. It is the branch of mathematics that deals with the study of variables and constant. So before understanding about polynomial, we should know what is algebra, and algebra is the branch of mathematics. In class 7th and 8th or 9th, we have studied about chapters like algebra, algebraic expression, and before proceeding, we should know what is algebra. So algebra is the branch of mathematics that deals with the study of variables and constant. Now, what is variables? Basically, variables are the small alphabets of English whose value vary. जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है उन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल, जैसे कि x, y, z. These all are variables. And then what are constant? Constant are the numbers of mathematics. They are called constant and their value remain fixed. उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उनकी वैल्यू हमेशा के लिए क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 1, 2, 3, these all are constant. So algebra is that branch of mathematics that will deal with the study of variables as well as कांस्टेंट. जो इनके बीच में रिलेशनशिप, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप डिनोट करेगी, उस ब्रांच का हमने एक नाम रख दिया, दैट इज अलजेब्रा. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अलजेब्रा, देयर आर एक्सप्रेशंस इन मैथमेटिक्स. देयर आर एक्सप्रेशन इन द मैथमेटिक्स. Now what are expressions? Expressions are the statements. Expression are the statement in mathematics. These expressions are of two types. One type is numeric expression and the other type is algebraic expression. The name of the chapter in class 7th and 8th, algebraic expression. So one type of expression is numeric expression and the other type of expression is algebraic expression. Now what is numeric expression? We have already read it in the classes BODMAS. In 7th, 8th, in 6th, 7th classes we did the chapter BODMAS. So that is called numeric expression, like this: 2 plus 3 minus 2 plus 5 divide 6. These all are numeric expression. So numeric expression is the expression having two or more than two numbers. It is having two or more than two numbers and these numbers are connected by basic mathematical operations. When two or more than two numbers are attached and they're connected by basic mathematical operation. Now what is basic mathematical operation? Basic mathematical operations are plus, minus, multiply or divide. These are called basic mathematical operations. These are called basic mathematical operations. So what is numeric expression? Numeric expression is the combination of numbers. Numeric expression is the combination of numbers and these numbers are connected. These numbers are connected by basic mathematical operations. मैथ्स के जो operations होते हैं उनके द्वारा ये connect किए जाते हैं. इन्हीं पूरे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. सिर्फ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में हमें क्या दिखेंगे? नंबर्स दिखेंगे पूरे एक्सप्रेशन के अंदर. और हम सॉल्व भी करते थे इनको बोर्ड मास के थ्रू, तो इन्हीं को हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं. नाउ द अदर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन that we have studied in class 7th and 8th, that is the name of the chapter was algebraic expression. So now we will understand about algebraic expression. Now what is algebraic expression? Algebraic expressions are also the combinations. Algebraic expression are also the combination, but these are not the combinations of only numbers, along with constant also, constant as well as variables का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? algebraic expression. So what is algebraic expression? Algebraic expression is also the combination, but it is the combination of variables as well as constant. It is the combination of variables as well as constant which are connected by basic mathematical operation. और इनको किसने कनेक्ट करके रखा हुआ है? बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस ने. बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस वही प्लस, minus, multiply or divide. Like for example 2x plus 3, it is also an expression. See, 2 and x
there is a basic mathematical operation of multiplication, and then basic math operation of addition, and this full is called algebraic expression. So what is algebraic expression? Algebraic expression is the combination of variables and constant. एक ऐसी statement जिसके अंदर variables दिखेंगे मुझे, constant दिखेंगे, और आपस में इनको कनेक्ट किसने कर रखा होगा? बेसिक मैथ्स के ऑपरेशंस ने. इनको बोलते हैं हम algebraic expression. Now after understanding about algebraic expression समझ गए, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि algebraic expression तो ठीक है, उसके बाद एक और चैप्टर होता था लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन नाम का चैप्टर. तो ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट, लाइक इफ आई एम राइटिंग 2x plus 3, it is the expression. But if I will put equal to sign in it like this, it will convert into equation. जैसे मैं इक्वल टू का साइन लगा दूंगा इसके अंदर, ये मेरी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. एंड बिफोर इक्वल टू साइन इट वाज एन एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन भी दो तरीके के हैं. अगर सिर्फ उसके अंदर नंबर्स दिखेंगे मुझे तो मैं बोल दूंगा ये मेरा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, और अगर मुझे नंबर्स के साथ वेरिएबल्स भी दिख जाएंगे तो मैं बोल दूंगा ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. और जैसे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू का साइन लग के कुछ लिख देते हैं हम, वो मेरी क्या बन जाती है? वो मेरी बन जाती है इक्वेशन. क्लियर है जी? अच्छा जी, अब इसके बाद हमें क्या समझना है? इसके बाद हमने समझ लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. आपको अभी समझ आएगा मैं क्यों इतना डीपली इन चीजों को बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का जो नाम है पॉलिनोमियल, ये यहीं से निकल के आया है. लास्ट में हमें पॉलिनोमियल का मतलब समझ आएगा, बिकॉज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका नाम पता होना चाहिए कि इसके नाम का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है. उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी दो टाइप्स के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखे हैं. वी हैव डिवाइडेड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने दो बेसिस पे डिवाइड कर रखा है. एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक उनकी डिग्री और एक उनके टर्म्स के बेसिस पे. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. हमने दो बेसिस पे अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. नाउ व्हाट आर टर्म्स? अगर हमने डिवीजन करी है तो पहले ये तो समझ ले टर्म्स है क्या. अगर हमने डिवीजन करी है पहले ये तो समझ ले डिग्री है क्या. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, इनकी क्लासिफिकेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि टर्म्स क्या होता है. उसकी क्लासिफिकेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या होता है. तो व्हाट आर टर्म्स? बिफोर अंडरस्टैंडिंग वी शुड नो व्हाट आर टर्म्स. तो टर्म क्या होता है? टर्म एक पार्ट है एक्सप्रेशन का, टर्म एक हिस्सा है एक्सप्रेशन का. टर्म सिर्फ एक हिस्सा है जिसको किसने बना रखा है, जिसको कौन सेपरेट करता है? प्लस और माइनस सेपरेट करते हैं. टर्म्स इज द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का हिस्सा है जिससे पूरा एक्सप्रेशन बन रखा है. और टर्म्स को मुझे कैसे पता लगेगा ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है? तो टर्म्स को अलग अलग करते हैं प्लस और माइनस के साइन. बेसिक मैथ्स के ऑपरेशन नहीं बोल सकते हम यहाँ पर, क्योंकि सारे ऑपरेशन नहीं करते, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता अलग अलग टर्म्स को, सिर्फ प्लस और माइनस अलग अलग करता है मेरी टर्म्स को. फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है 2x plus 3y minus 5. तो इसके अंदर से जो 2x है वो एक टर्म है, जो 3y है वो एक टर्म है, और जो -5 है वो मेरी एक टर्म है. क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस क्या करते हैं? मेरी टर्म्स को अलग अलग करती हैं. 2x एक टर्म है, 3y एक टर्म है और 5 एक टर्म है. -5 नहीं, 5 एक टर्म है यहाँ पर. तो टर्म को अलग अलग कौन करेगा? प्लस और माइनस. जिससे मेरा एक्सप्रेशन बना है उसी को हम क्या बोल देते हैं? टर्म बोल देते हैं. अब टर्म को क्लियर करने के बाद हमें समझना पड़ेगा डिग्री को. टर्म को क्लियर करने के बाद हमें समझना पड़ेगा डिग्री को. चलो टर्म के ऊपर एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 9x - 3. अब इसके अंदर टर्म्स क्या है? पहली टर्म हो जाएगी 9x और दूसरी टर्म हो जाएगी 3, क्योंकि इससे मेरा एक्सप्रेशन बना है. और इन टर्म्स को अलग अलग कर किसने रखा है? इस माइनस के साइन ने. यहां टर्म्स को किसने अलग अलग कर रखा है? प्लस के साइन ने और माइनस के साइन ने. आई होप सो आपको यहां तक क्लियर होगा. इसके बाद हमने दूसरी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की थी? दूसरी क्लासिफिकेशन करी थी हमने डिग्री के बेसिस पे. नाउ व्हाट इज डिग्री? फिर डिग्री क्या होता है? तो डिग्री को समझने से पहले हम क्या समझना पड़ेगा कि डिग्री का मतलब क्या है. तो डिग्री का मतलब है
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में उसके वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, किसी भी एक्सप्रेशन में उसके वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल, उसको क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5। अगर मुझे इसके अंदर डिग्री देखनी है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर देखते हैं हम उसके अंदर कांस्टेंट की पावर नहीं देखेंगे, हम वेरिएबल की पावर देखेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। यहां पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री है 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिग्री का, जैसे मैंने बोला 5x की पावर 10 माइनस 10x प्लस 5। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की। तो यहां देखो वेरिएबल, ये मेरा एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज 10, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 10। आई होप सो आपको यहां तक क्लियर होगा कि हमने जो दो क्लासिफिकेशन करे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा था हमने और एक डिग्री के बेसिस पे। अब इस टर्म्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करा, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स आते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। जो टर्म्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करा, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो टर्म्स के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन करा, पहला टाइप जो है टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का वो है मोनोमियल, वो होता है मोनोमियल। सेकंड टाइप होता है बाइनोमियल एंड थर्ड टाइप इज trinomial, and then the fourth type is quadrinomial, and the last type is polynomial. These are the types, and on the basis of degree, और डिग्री के बेसिस पे भी अलग अलग डिविजन्स हैं। फर्स्ट टाइप इज लीनियर, सेकेंड टाइप इज क्वाड्रेटिक, थर्ड टाइप इज क्यूबिक, and the last type is biquadratic. So first type, that is monomial. Mono means one, means the type of expression having only one term. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, उसके अलावा कोई टर्म ही नहीं है, तो उस एक्सप्रेशन का एक नाम रख दिया हमने मोनोमियल। उसको हमने नाम दे दिया कि भाई तेरे अंदर सिर्फ एक टर्म है, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल टर्म है तेरे अंदर, तेरा नाम रख देंगे हम मोनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे कि 2x, जैसे कि 5y, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, मोनोमियल के एग्जांपल हैं। जिस एक्सप्रेशन में आपको सिंगल टर्म दिख जाए आपने उसका नाम रख देना है मोनोमियल। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होता है बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है टू, जैसे बाइसिकल होती है, बाइसिकल को बाइसिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर दो टायर होते हैं। बाय का मतलब ही टू होता है, बाय का मतलब, तो मतलब ऐसा एक्सप्रेशन मोनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म दिखेगी आपको, बाइनोमियल में आपको दिखेंगी दो टर्म्स। तो मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कितनी टर्म्स हैं उसको बोलते हैं, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाइनोमियल का एग्जाम्पल लूं यहां पर, तो जैसे कि 2x प्लस 3, 5x प्लस 9, तो ये सारे एक्सप्रेशन किस टाइप के हैं, बाइनोमियल टाइप के हैं। मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको दो टर्म दिख जाएंगी, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी हमने एक नाम रख रखा है, दैट इज बाइनोमियल। ये देखो दो टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपको दो टर्म दिख गई, उस एक्सप्रेशन का हमने नाम रख दिया, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। The next type of expression that is trinomial. Tri means three. Our country flag is tricolor flag. Why we call it a tricolor flag? Tri means three. तो ट्राई का मतलब ही तीन होता है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स दिखेंगे, हमें तीन टर्म्स दिखेंगे, उस एक्सप्रेशन का भी हम एक नाम रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल हियर, 2x plus 3y minus 5. See, there are three terms, 2x, 3y, 5. So this type of expression will be called as trinomial. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमें तीन टर्म्स दिख जाएंगी, उस एक्सप्रेशन का हमने नाम रख दिया ट्राइनोमियल। The next type of expression is quadrinomial. Quadrinomial means a type of expression having four terms. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमें चार टर्म्स दिख जाएंगी, उसका भी हमने एक नाम रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड
क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स 4, तो मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स है उसको हमने नाम रख दिया क्वाड्रीनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x plus 3y plus 5z minus 8. This type of expression, see there are 4 terms, 1, 2, 3, 4. So it is called quadrinomial. Now the main thing comes in the chapter, the name of the chapter, that is polynomial. From here you will derive the where we are standing and from where we have started, the name of the chapter, that is polynomial. So what is polynomial? Now I will make you understand now what is polynomial. So polynomial is the algebraic expression. Polynomial is the algebraic expression having one or more than one term. Having one or more than one term. मतलब पॉलिनोमियल भी एक तरीके का एक्सप्रेशन ही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी? इसके अंदर या तो एक टर्म हो, या दो, या तीन, या चार, या उससे ज्यादा. मतलब हम ये बोल सकते हैं चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रिनोमियल हो, सबको ही हमने एक नाम रख दिया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. तो मतलब पॉलिनोमियल एक तरीके का हेड है, उसके अंदर ये सारे आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, और उससे ज्यादा वाली टर्म्स को भी हमने एक नाम दे दिया, सबका एक ही नाम रख दिया, दैट इज पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स वालों को क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल बोला जाता है. मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो या उससे ज्यादा टर्म हो, कितनी भी टर्म हो, सबका ही हमने एक ही नाम रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड polynomial. So in class 10th we will study about this chapter where we will see different type of expressions and how to find their roots, their zeros, and how to verify them. This we will also understand. Even in class 9th our chapter name was polynomial, and there the name of the chapter, that is polynomial. So what is polynomial? Polynomial is the expression, it is a algebraic expression having having one or more than one terms. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें या तो एक टर्म हो, having one or more than one term. Such type of expression is called polynomial. So here is the meaning of our chapter, that is polynomial. Means the polynomial is the algebraic expression having one or more than one टर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. तो चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे वो बाय, चाहे वो ट्राइनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रिनोमियल हो, चाहे वो उससे ज्यादा टर्म वाला हो, सबका हमने एक ही नाम रख दिया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. आई होप सो आपको यहां तक क्लियर होगा. ओके, उसके बाद हमने एक और क्लासिफिकेशन की थी एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के बेसिस पे भी हमने क्या कर रखी है? क्लासिफिकेशन कर रखी है. तो पहली क्लासिफिकेशन डिग्री के बेसिस पे. अब हम टर्म पे नहीं देखेंगे, अब हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? वेरिएबल की पावर को देखेंगे, वेरिएबल की डिग्री को देखेंगे. तो फर्स्ट टाइप उसके अंदर कौन सा आता है? लीनियर. तो लीनियर मींस, तो हम चैप्टर का नाम पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन, एंड द फर्स्ट टाइप इज लीनियर. लीनियर मींस ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री है, जिसकी पावर, जिसके अंदर हमारे वेरिएबल की पावर क्या है? 1. Such a type of algebraic expression having only one variable, having only the exponent is 1 of the variable. For example, the example of linear, I am taking the example of linear 2x plus 3. See, when nothing is written, we will always assume it as 1. So here the degree was nothing, so we will always assume it as 1. See, here the degree is 1. So this type of expression will be called as linear polynomial, linear algebraic expression. This type of expression will be called as linear algebraic expression because here the degree is 1. तो जिस algebraic expression के अंदर वेरिएबल की पावर मुझे 1 दिख जाएगी, वेरिएबल की डिग्री मुझे 1 दिख जाएगी, उस algebraic expression का हम एक नाम रख देंगे, that is called linear algebraic expression. Another type of example we are taking, that is 5y plus 9. Here also the variable power is 1. So this is also linear. I hope so यहाँ तक आपको क्लियर होगा. The next type of expression on the basis of degree is quadratic.
the main type of expression that we will study here, that is quadratic. In class 10th we will study mainly about this quadratic. Now what is quadratic? Even in class in your exams the question will come definitely from this, although in MCQ or short answer type. क्वाड्रेटिक, तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर डिग्री क्या है? 2, उसे हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। जिसके अंदर डिग्री मुझे क्या दिख जाएगी? 2 दिख जाएगी। देखो जी, फॉर एग्जांपल 2x power 2 plus 3x plus 5, this type of expression here degree is 2, so this type of expression will be called as quadratic algebraic expression. Quadratic means having degree 2, so such type of algebraic expression will be called as quadratic algebraic expression. Now the next type of algebraic expression is cubic algebraic expression. Cubic algebraic expression, what is cubic algebraic expression? Cubic means 3, so such type of algebraic expression, linear means 1, quadratic means degree 2 and cubic means degree 3. Such type of algebraic expression we will have an overview of this also in class 10th, and even example number 5 of your book is based on this only. But the main basically we will study about quadratic only, but yes, the questions can also come from cubic. Cubic algebraic expression, cubic means having degree 3. For example, I am taking example here, Q for cubic, 2x cube plus 3x square plus 5x plus 9. Here the highest power of variable is 3. So such type of algebraic expression having degree 3, that is called cubic algebraic expression. उसी को हम क्या बोलते हैं? Cubic algebraic expression. Such type of expression is called cubic algebraic expression, in which the degree is 3. Now the next type of algebraic expression that we are understanding, that is biquadratic. Biquadratic is such type of algebraic expression having 4 or more than 4. सबको ही हम क्या बोल देंगे? सबको हम बोल देंगे बायक्वाड्रेटिक। चाहे 4 हो, चाहे 4 से ज्यादा जिनकी डिग्री हो, उन सबका हमने एक नाम रखा हुआ है बायक्वाड्रेटिक। सो वी आर रिवाइजिंग दिस चार्ट। Algebraic expression we have divided algebraic expression on the basis of 2, on the basis of term and on the basis of degree. On the basis of term and on the basis of degree. On the basis of term we have 4 classification, 4 to 5 classification. First type is linear. Linear means having first type of expression, that is monomial. Monomial means having only one term. Second type is binomial, having 2 terms. Third type is trinomial, having 3 terms. Fourth type is quadrinomial, having 4 terms. And the last type was polynomial. That is the name of our chapter, means such type of algebraic expression having 1 or more than 1 terms, that is called polynomial. I hope so it is clear. The next type on the basis, next type was degree. Degree के basis पे थी 4 divisions. First type was linear, having degree only 1. Second type was quadratic, having degree 2. Third type was cubic, having degree 3. And the last type was biquadratic, having 4 or more than 4 degree, that is called biquadratic. After understanding about these things, now we have understood the name of the chapter. The chapter we are understanding, that is polynomial. So what is polynomial? Polynomial is the expression having 1 or more than 1 terms. तो आपको इससे ये क्लियर हो गया होगा हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में पढ़ना है पॉलिनोमियल के बारे में, मतलब हम ऐसे एक्सप्रेशन देखेंगे जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म्स होंगी, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये जो डिवीजन एक्सप्रेशन की मैंने बोली है, यही डिवीजन पॉलिनोमियल में बोलते हैं हम। यही डिवीजन हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल 2 बेसिस पे डिवाइड कर रखे हैं। अब इसके बाद फर्स्ट टाइप, ये चीज समझने के बाद कि पॉलिनोमियल की बेसिस के डिवीजन हमने समझ ली, उसके बाद हमें समझना है मेन पार्ट ऑफ आवर बुक। Main part of our book is, that is graphical representation. Graphical representation of polynomial, the first type. Graphical representation of polynomial. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतनी सी बात बोलती है। सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले, कि हम ग्राफ पे शो कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है पॉलिनोमियल की। Graphical representation of polynomial. Graphical representation means ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे हम पॉलिनोमियल को।
सबसे पहले तो हमें समझना है कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसका ग्राफ कैसे बनता है, या कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ कैसे बनता है। उसका ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन. Its graph will always be a straight line. See, this type of graph we will get. Even in class 9, chapter number 3, coordinate geometry, the last exercise we have done this only. We used to make the graph for the lines, and we always used to get the single line, straight line, because it was the graph of line. It was the graph of line. वो line का graph होता था. तो जब भी कोई line वाला graph होता है, कोई भी linear वाला graph होता है, तो हमेशा उसका जो हमें graphical representation मिलेगा वो एक straight line मिलेगी. The next type we are understanding is quadratic, क्योंकि हमें चैप्टर के अंदर सारा क्वाड्रेटिक ही समझना है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंस्टेड ऑफ इक्वेशन आई हैव टू राइट हियर पॉलिनोमियल. अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हमेशा क्या मिलता है हमें, पैराबोला. क्या मिलेगा हमें, पैराबोला. तो पैराबोला मींस, सी हियर, दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला. This is the shape of parabola. We will always get parabola shape. Parabolic shape means this type of shape. Now, after understanding this, we will get parabola, and in case of the linear, we will always get straight line. We have understood this. Now, after understanding this topic, we are understanding, because in exam they will give you a graph and they will ask how many zeros will be there of this polynomial. So for that thing, we will see one thing. See, this graphical representation. What we will see, and here the quadratic polynomial, the graph of the quadratic, it is a graph of quadratic polynomial, and its equation is always y is equals to x square. Its equation is always y is equals to x square. If its equation is y is equals to x square, पैराबोला की हमेशा इक्वेशन होती है y is equals to x square. अगर इक्वेशन ही y is equals to x square है, it means, इससे हमें क्या बात पता लग रही है कि जो मैं इनपुट डालूंगा x के अंदर वही इनपुट क्या आएगा, y का, वही आउटपुट आएगा y के लिए. जो इनपुट मैं x के अंदर डालूंगा वही मेरा आउटपुट आएगा y के लिए. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पूरा का पूरा ग्राफ किस पे डिपेंड हो रहा है, x के ऊपर डिपेंड हो रहा है. x के ऊपर डिपेंड हो रहा है, x एक्सिस के ऊपर डिपेंड हो रहा है. दिस मीन्स जब भी हम पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे, उसके जीरोस देखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, हमेशा हम देखेंगे x एक्सिस को. हमेशा हम देखेंगे x एक्सिस को. जितनी बार मेरा ग्राफ, जितनी बार मेरा पैराबोला x एक्सिस को कट या टच करेगा, जितनी बार मेरा पैराबोला x एक्सिस को कट या टच करेगा, उतने उसके अंदर नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे. उसके अंदर उतने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, जितनी बार वो कट या टच. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड टच. देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन कट एंड टच. सी, if we are taking this graph and the graph is coming from here, see, this is called touch. This is called touch. इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पैराबोला ऊपर से आया है और इस एक्स एक्सिस पे नॉर्मल टच करके आगे की तरफ बढ़ गया. लेकिन द अनदर टाइप, इफ आई एम टेकिंग दिस टाइप, सी, this is called cut. Here the parabola has exceeded the x-axis and it has gone down. So this is called cut and this is called touch. And we will see the zero, whether it will cut or whether it will touch. Doesn't matter. If it has touched or it has cut the x-axis, means there is the zero of the polynomial. For example, I am taking example also. See here. This is the graph. Any polynomial it can be. Any polynomial it can be. This is, if it is this, this is the graph. Then number of zeros. They will ask number of zeros of the polynomial. Then what? How many number of zeros? What I have said. It should cut the x-axis. It should cut or touch the x-axis. The parabola should cut or touch.
doesn't matter how many times it is cutting or touching, doesn't matter. We just have to see that how many times. See here, only on the x-axis. Why only on the x-axis? I have given you the logic. Because the graph equation is y is equals to x square. So y is equals to x square means the whole graph is dependent on x-axis. Because whatever the value will be x, we will get the value of y. So we will always see the x-axis, not y-axis. See here, it is touching x-axis here. These are the two axes, y dash, x dash, x dash. One time it is touching here. This is the 1 0, second 1 0, third, fourth, fifth. So number of zeros are 5. How many zeros are there? 5 zeros. We will not see y-axis. We will never see y-axis. We will only see x-axis. जितनी बार मेरा ग्राफ, जितनी बार मेरा पैराबोला किसको काटेगा या टच करेगा किसको, y-axis को, हम उतनी उसके क्या बोल देंगे, उतने नंबर ऑफ जीरोस बोल देंगे. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे these number of zeros, this is the 1 0, this is another 0, and this is third 0. So there are 3 zeros of this graph. I hope so it is clear. Now the exercise 1.1 of this chapter, that is number of zeros. First of all you can try, and in the next video we will proceed with exercise 1.1 and we will proceed with the next topic, that is zeros and the relation between the coefficient of a quadratic polynomial. I hope so it is clear. Please like, share and subscribe Handuja classes.